ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بہت بڑی خوشخبری والی آیت ہے. کوئی بھی انسان جب اس آیت کو پڑھے گا، جب اس معنی اور مطلب کو پر پہنچے گا اس آیت پہ، تو اس کو بہت بڑی ایک سبق ملے گی. آگے کی اس کی جو زندگی ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اس کے اوپر اس کو بہت بڑا عزم اور حوصلہ ملے گا. اور پھر اس کو ترنت آگے کیا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے، وہ بھی انہی جو چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بہت شارٹ کٹ انداز میں اور بہت مختصر انداز میں اور بہت جامع بات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ہماری زندگی کا ماحصل بتا دیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دیا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں ہمیں ملنے والی ہیں، مگر اس میں کنڈیشن بھی لگا دیا ہے کہ جن لوگوں نے کہا انہی کو یہ چیزیں ملیں گی، اور جن لوگوں نے نہیں کہا ان کو اللہ تعالیٰ نے اسے مستثنیٰ کر دیا، ان کو چھاڑ دیا، ان کو الگ کر دیا، اس میں کیٹیگری کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا، یعنی جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کو، اس مبارک کتاب کے نازل ہونے کے بعد، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، اس میں اس دنیا پہ، اس دھرتی پہ جو بھی انسان آئے گا اور وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، ایمان کو قبول کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتا ہے، اور پھر اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اس کو بہت بڑی یہ انعام جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دینے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب جو ہے اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی بابا کو، کسی مزار کو، کسی بت کو یا کسی طرح کا کوئی بھی اپنا معبود نہیں ٹھہرایا، کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا کو نہیں ٹیکا، کسی اور چیزوں کے سامنے. آج ہم دیکھتے ہیں یہ اس آیت کے حساب سے، اس آیت کو جب ہم پڑھیں گے، جب مسلمان جو پڑھنے والا ہے اس کا اردو ترجمہ جب پڑھے گا، اس کی جب تفسیر کو پڑھے گا، تو ہم جو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں ہم مسلمانوں کی جو تعداد ہے، جو نام کے جو مسلمان ہیں، جو نام سے جو کہلاتے ہیں کہ یہ مسلم ہیں، بہت سارے تو ایسے بھی مسلمان ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن ان کا نام بھی غیر قوموں کی طرح نام ہے، تو وہ اور الگ وہ بدقسمت لوگ ہیں. تو لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ہم مسلمان جو ہے مسلمانیت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، نام ہم بولتے ہیں کہ ہمارا محمد اور احمد اور اس طرح کے نام ہیں، لیکن جو ہمارا کام جو ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، اس کے بالکل الٹا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو فرمایا ہے، اس میں جو گارنٹی دیا ہے، اس گارنٹی میں بہت سارے مسلمان جو ہے، آج کا جو مسلمان ہے اس ہندوستان میں ہی دیکھ لیجئے، ہمارے اس ہندوستان میں لگ بھگ 22 کروڑ کے برابر میں، 22-23 کروڑ کے برابر میں جن سنکھیا میں ہم مسلمانوں کی تعداد ہے. لیکن اس آیت کے حساب سے
जो सच्चा और पक्का मुसलमान है उसकी अगर अल्लाह ताला के रजिस्टर में देखा जाए तो हमें लगता है कि बहुत कम तादाद है। ऐसे मोमिनीन की इस आयत के एतबार से इन रहमतों, इन बरकतों और इन आमाद का जो हासिल करने वाला आज का मुसलमान है ये बहुत कम तादाद महसूस होती है। जैसे आटा में नमक होता है वैसे आज का मुसलमान हो गया है। इस आयत के हिसाब से ये आयत जो है हमें ये बहुत बड़ी वईद भी सुनाती है और मुसलमानों को जो ईमान वाले हैं उनको बहुत बड़ी खुशखबरी भी सुनाती है। अल्लाह ताला इसमें कहता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब जो है वो अल्लाह है। अब हम देखते हैं आज का जो मुसलमान है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे दरगाहों पे वो माथा टेकता है। जो सर अल्लाह के सामने झुकना चाहिए, नमाजों में मस्जिदों में झुकना चाहिए, आज का ये मुसलमान, नाम का मुसलमान, ये मज़ारों पे जाकर के अपने माथा को टेकता है। जो आदमी बहुत सारे जो बड़े बड़े जो नेक लोग हैं उनको, जैसे बहुत सारे लोग जो नेक हुए हैं तो वो इंतकाल कर गए हैं, तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे कोई भी कितना बड़ा आदमी हो सकता है, कोई कितना बड़ा वली हो जाए, लेकिन कोई कितना बड़ा नबी, कितना बड़ा नेक इंसान हो जाए, लेकिन वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम पे भी कोई भी मुसीबत आती थी, जिंदगी में कोई भी परेशानी आती थी, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सीरत को उठा कर देखिए, इतिहास को उठा करके देखिए। हम मुसलमान जो है अक्सर जाहिल हैं, खाली हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, सिर्फ खाने के लिए मुसलमान रह गए हैं। हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठा करके देखिए, आप देखेंगे जब पहली मारका हुई, पहली जो लड़ाई हुई, पहली जो जंग हुई तो 313 थे सहाबे किराम जो थे, 313 थे, और मुखालिफ में जो गैर कौम थी वो 1000 की तादाद में थी, और वो हर तरह के ज़ब व हर से लैस थी, हर तरह के हथियारों से लैस थी। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम निहत्थे थे और कमज़ोर थे, उनको बहुत सारी चीज़ें मैसर नहीं थी, बहुत सारे हथियार नहीं थे, खाली हाथ थे, और वो एक तरफ 1000 थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे वो भी निहत थे, वो 313 थे। वहां पे भी देखिए इस तरह का जब मार्का पेश आता है, इस तरह का जब अलमिया पेश आ जाता है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबियों के इमाम हैं, जो जिनसे अफजल इंसान इस दुनिया में कोई पैदा हुआ ही नहीं है और न कोई पैदा हो सकता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान भी इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया है। जितने भी अंबिया आए हुए हैं सभी अंबिया के खानदान से सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम खानदान से हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे इंसान हैं जो जिनको अल्लाह ताला ने मेराज में बुलाया। क्या क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं, इतने ज़्यादा मर्तबे हैं कि हम उनको बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, उसके लिए अल्फाज हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा इंसान, ऐसा नबी जो तमाम नबियों का इमाम है, जो अल्लाह ताला के पास पहुंचा हुआ है, जो मेराज तक गया हुआ है, किसी भी नबी को ये मर्तबा नहीं दिया गया। तो ऐसा नाजुक हालत होती है, ऐसी कसम पसरी की हालत होती है, तो वहाँ पे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। आज जो मुसलमान जो थोड़े मुड़े पढ़े लिखे हैं वो देखते होंगे, जानते होंगे, किताबों में पढ़ते होंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं कि उस तरफ इतना बड़ा लश्कर जर्रार है और इस तरफ हमारे जो है ईमान वाले जो लोग हैं, सहाबे किराम जो हैं बहुत कमज़ोर हैं, हथियार नहीं है, क्या मुकाबला कर सकते? कोई मुकाबला ही नहीं था उस फौज में और हमारे सहाबे किराम के बीच में कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला पे उम्मीद थी, अल्लाह ताला पे तवक्कुल था। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ को जाते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या परेशानी होगी, उस टाइम कितनी तेज धूप होती है, और फिर इस तरह का जब नौबत आ जाता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत करके, पत्थरों को खा करके और पता नहीं क्या क्या ताने तिश्ने सुन करके लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दीन के लिए, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बात को और हमारी जन्नत की रहनुमाई के लिए जगह जगह पे जाते थे, घर घर जाते थे, लोगों को बताते थे, समझाते थे, उनके फायदे के लिए बताते थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा जाता था, पागल कहा जाता था, मजनून कहा जाता था, और पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता था, कैसी कैसी तकलीफें दी जाती थी, ज़हनी और जिस्मानी हर तरह की तकलीफों से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर किया जाता था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना ज़्यादा अल्लाह ताला पे तवक्कुल था, कितना ज़्यादा यकीन था कि इस हालत में भी
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते हैं कि कोई मुकाबला नहीं है और ये निहत्थे लोग और वो जालिम जो है हर तरह से हथियारों से लैस हैं और कत्ल करने के डर पे हैं, तो अल्लाह ताला के सामने एक तरफ जाते हैं और अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं और उस तेज धूप में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथा जमीन पर अल्लाह ताला के सामने टेकते हैं, अल्लाह ताला से मदद के लिए अल्लाह ताला को पुकारते हैं और अल्लाह ताला की मदद आती है। लेकिन हम मुसलमान जो हैं, हम नाम के मुसलमान हैं, सिर्फ खाने के लिए मुसलमान हैं। कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो हम गैरुल्लाह के सामने, बुतों के सामने, मज़ारों के सामने, कब्रों के सामने, बाबाओं के सामने, पीरों के सामने उनका सजदा करना शुरू कर देते हैं। उनको अल्लाह के बराबर, अल्लाह के दर्जे में हम रख देते हैं। उनके पैरों को चूमते हैं, उनके पैरों का सजदा करते हैं, उनके हाथों का सजदा करते हैं। ये कैसे मुसलमान हो सकता है? ये शिर्क करने वाला मुसलमान जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और को भी अपना माबूद समझता है, किसी और के सामने अपने माथा को टेकता है, किसी और से अपनी मुरादों को मांगता है। कोई औलाद अगर किसी को नहीं होती है, शादी अगर हो जाती है और औलाद नहीं होती है, 2-4 साल 2-3 साल अगर इलाज कराता है, नहीं शादी होती है, तो बहुत सारे लोग मदरिया पहाड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, किस तरह की खुराफात करते हैं। और अगर कोई चीज़ हो जाता है तो समझते हैं कि अल्लाह ताला की जगह पर दूसरे को अपना माबूद तस्लीम कर लेते हैं। तो ये मुसलमान जो हैं, ये नाम के मुसलमान हैं, ये अंदर से काफिर हैं। और ऐसे लोग जो हैं इस आयत के मिस्दाक नहीं हो सकते हैं। इस आयत में जो अल्लाह ताला ने जो फजीलत और बरकत बताई है वो इससे मुस्तस्ना है। वो अल्लाह ताला उनको छांट देगा, दूध का दूध, पानी का पानी। हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिलावट कर देते हैं। दूध वाले जो होते हैं 1 किलो दूध है तो 2 किलो पानी अगर डाल देते हैं, तो हमें अगर दे दें तो हम उसमें छटाई नहीं कर सकते हैं, उसको हमें खरीदना ही पड़ेगा, हमें पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन अल्लाह जो है, अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक और जानने वाला है। और अल्लाह ताला ने ही एक चीज़ को पैदा किया है। जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि अगर 10 किलो भी दूध हो, अगर 1 बूंद भी उसमें नींबू अगर डाल दिया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। दुनिया में अल्लाह ताला ने नींबू को भी पैदा कर दिया है, दूध को भी पैदा कर दिया है। तो अल्लाह ताला जो हर चीज़ को पैदा करने वाला है, तो वहाँ पे जब हम ऐसा मुसलमान जो अल्लाह के अलावा दूसरे चीज़ों को अपना रब तस्लीम करता है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला छटाई कर देगा, दूध का दूध, पानी का पानी फैसला करेगा। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में भी तरह तरह की अजाबों में मुब्तला करता है। और फिर अगर दुनिया में तो छोड़ भी देता है, रस्सी को अगर ढील भी देता है, तो फिर मरने के बाद बहुत दर्दनाक अजाब देता है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में जो फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि इसमें जो लोग अल्लाह ताला को ही रब अपना मानते हैं, किसी पीर फकीर के सामने, किसी बाबा के सामने, किसी मज़ार के सामने, किसी बुत के सामने अपना माथा नहीं टेकते हैं, तो फिर वो लोग बहुत बड़ी खुशखबरी के लायक हैं। अल्लाह ताला उनको कहता है कि सुम्मा इस्तक़ामू, ये तस्लीम कर लेने के बाद, ईमान को अपने दिल में बिठा लेने के बाद और अल्लाह ताला पे कामिल यकीन कर लेने के बाद और फिर उस पर डट जाते हैं। अगर गैर कौमों की तरफ से या अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई भी मामला हो जाता है, कोई कितना हो बड़ा दुख तकलीफ पहुँच जाती है, फिर भी उनका पैर जो है, उनका ईमान जो है अल्लाह ताला से नहीं डगमगाता है। ऐसा नहीं कि सुबह में कोई खुशी मिल गई तो हाँ ठीक है अल्लाह अल्लाह, और कोई परेशानी आ गई तो दौड़ो फलाना बाबा के पास, फलाना चिलाना के पास। आजकल हम मुसलमान देखते हैं जो हमारे लिए नमाज जो हमारी फ़र्ज है, 5 वक्त की नमाज जो फ़र्ज है, अगर किसी मुसलमान को थोड़ा सा कोई बीमारी अगर हो जाती है, अगर कोई इलाज कराता है, कुछ नहीं हो पाता है, तो तुरंत हम दौड़ते हैं, लौंग लेके दौड़ते हैं। लेकिन हम दूसरे के लिए दूसरे से दम कराते हैं। और लेकिन ये हम नहीं जानते हैं, ये नहीं समझते हैं कि हमें भी अल्लाह ताला की इबादत फ़र्ज़ है। और हम अगर नमाज को पढ़ते हैं, 5 की नमाज़ों को का एहतमाम अगर करते हैं, कुरान की अगर तिलावत करते हैं, अगर जितनी भी हमारी ज़िंदगी बची हुई है उसमें हम कुरान को अगर सीखते हैं, तो ये सबसे बड़ा काम है। ये हमारा दुनिया में भी बरकत देने वाली चीज़ है और आखिरत में भी है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो कुरान को नाजिल किया है, ये किताब जो हमारे ऊपर नाजिल हुई है, तो ये ताकों में सजाने के लिए नहीं है, इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। हम अपने दिलों में हमें ईमान को भरना चाहिए। इसको जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारी ईमान जो है मजबूत होगी। हदीस में आता है कि जब कोई इंसान
सच्चे दिल से वजू करता है, पाक साफ होता है, वजू करता है और कुरान को जब पढ़ता है तो जब कुरान की जब तिलावत करता है उसके मानी और मतालिब को समझने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला की जो रहमत होती है उसकी तरफ मुतवज्जा होती है और उस टाइम हम अगर दुआ करते हैं तो हमें हमारी दुआ कबूल होती है। और अगर कोई परेशानी भी है तो बहुत सारी आयत हैं, कुरान की बहुत सारी आयत हैं, बहुत सारी दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। उसको अगर कोई भी ईमान वाला आदमी अगर पढ़ता है उसको तो अल्लाह ताला उसको शिफा देता है। हमें दूसरों को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी चाबी, बहुत बड़ी कुंजी हमें हमारे हाथों में दिया हुआ है लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते हैं। तो इससे बड़ा बदनसीब बदबख्ती हमारी और क्या हो सकती है। आज का जो मुसलमान है वो गैर कौमों, आज एक मुसलमान और दूसरी कौम के लोगों में कोई फर्क नहीं रह गया है, बस नाम का एक रह गया है, बस खाना एक अलग रह गया है, बस हम खाने के लिए मुसलमान रह गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मनाक है, ये बहुत बड़ी इबरत की जगह है और ये हमें इसका बहुत ज़्यादा अपना मुहासबा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसकी तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए और इसी की तरफ हमें आने वाली नस्लों की भी फिक्र करनी चाहिए। हमारे सहाबा कराम जो थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, इस दीन के लिए कितनी तकलीफात को, कितनी परेशानियों को बर्दाश्त किया है ताकि ये दीन अल्लाह का जो पैगाम है वो दूसरों तक पहुँचाए। लेकिन हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे नबी के उम्मती हैं, हम कैसे डुप्लीकेट मुसलमान हैं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, सहाबा किराम की कामों को हम अपने नस्लों में, अपने बेटे बेटियों में, अपने पोते पोतियों में, अपने नाती नकरों में मुंतकिल नहीं कर पाते हैं। कुरान और हदीस की तालीमात को उनको नहीं देते हैं, बस उनको पैसा कमाने की मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। चाहते हैं कि हमारे को अल्लाह ताला का बेटा दे दिया है तो बस हमारे लिए वो एटीएम मशीन बन जाए, बस पैसा देने वाला चीज़ बन जाए, कमा करके लाए और बस हम खाएं। दूसरी कौमें जो हैं वो पढ़ाई करती हैं, लिखाई करती हैं और वो दुनिया के बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हम मुसलमान जो हैं जो पढ़ने के लिए हमारा सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान भी हुआ है तो हम तो अपने बच्चों को, आज का मुसलमान जो है इतना गुजरा हुआ, इतना गिरा हुआ है कि बच्चे जो पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है और बच्ची पैदा होती है तो गम मनाई जाती है कि कहाँ से इतना लाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से ये होगा। हमने सारे सिस्टम को दरहम बरहम कर दिया है और हम अपने लिए अल्लाह दुनिया में भी अपने सर पे वबाल उठाने की कोशिश करते हैं, वबाल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आखिरत में भी हम अल्लाह ताला के यहाँ अजाब के मुस्तहिक होने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है, इस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को कम से कम दीनी तालीमात जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दीन का इल्म जो है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हलाल और हराम की तमीज़ जो है हर इंसान पे, हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। लेकिन आज कौन ये फ़र्ज़ को अदा करता है? जल्दी से किसी तरह से खाओ पियो, बड़ा हो जाओ, शादी ब्याह कर लो, किसी तरह टाइम पास कर लो, मर्द हो तो या औरत हो तो, लड़का हो तो या लड़की हो तो, सबका यही मकसद होता है। लेकिन दीन की तालीमात को औलाद भी, गार्जियन भी, वालिदैन भी नहीं चाहते हैं कि दीन की तालीमात को हम अपनी नस्लों में, हमारे को अल्लाह ताला का बेटा दिया है या बेटी दिया है, या अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा तोहफा है, उसको हम दीन दे, कुरान हदीस की तालीमात को आगे बढ़ाएं कि हम मरने के बाद भी अगर वो कुरान पढ़ेगा या कुरान पढ़ेगी तो ज़रूर वो नेक होगी, तो हमारे को उसका सवाब मिलेगा, हमारा वहाँ पे दर्जा बुलंद होगा। लेकिन हम बस दुनिया की जिंदगी के लिए हमारा उठना बैठना 24 घंटा हमारी सोच जो है बस दुनिया के लिए है और आखिरत के लिए बिल्कुल नहीं है। दुनिया की जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है, कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसके लिए हम पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। और जो हमारी जो जिंदगी है, हमेशा की जो जिंदगी है, जहाँ पे मर के हमें हमेशा रहना है, तो उसके लिए हमारी कोई कोशिश नहीं है। क्यों कोशिश नहीं है? क्योंकि हमें यकीन ही नहीं है, हमें एतमाद ही नहीं है, हमें ईमान ही नहीं है कि हम मरने के बाद ही दोबारा जिंदगी जाएंगे। हमें कुरान पे, इस्लाम पे, इस्लामी अहकामात पे हमें यकीन ही नहीं है, इसीलिए हम इस पे काम नहीं करते हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है, ये कितनी बड़ी बदनसीबी है, बदबख्ती है। हम मुसलमानों की इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत है। तो अभी मैं आपको लंबी बात, दूसरी तरफ बात चली गई, मैं आपको बताना चाह रहा था कि अल्लाह ताला ने जो ये आयत जो फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह
सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि जो इंसान भी अगर अल्लाह ताला को अपना सच्चा पक्का रब मानता है, दिल से इकरार करता है और उसकी इकरार के हिसाब से अपनी ज़िंदगी में अमल करता है, तो फिर अल्लाह ताला इनामों की बौछार कर देता है। तो अल्लाह ताला कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो ऐसे इंसान पे जो है तो अल्लाह ताला सुम्मा इस्तक़ामू, उस पर डट जाता है और अपनी ज़िंदगी को मौत के आने तक अल्लाह ताला पे कामिल यकीन रखता है, तो ऐसे इंसान पे अल्लाह ताला अपनी नेमतों की बौछार करता है। उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो है ये बताता है, अल्लाह ताला ने गारंटी दिया है कि जब वो मरने की कगार पर जाता है तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने ये दुआ फरमाया है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो ऐसा इंसान जो है दुनिया में भी खाली हाथ नहीं रहेगा और आखिरत में भी खाली हाथ नहीं रहेगा। जन्नत जैसी नेमत को अल्लाह ताला उसको मयसर करेगा, और फिर दुनिया में भी जब उसकी रूह जब निकलने लगती है, जब रूह निकलने लगेगी तो वहाँ पे फरिश्ते उसके जो हैं फरिश्ते उसके लिए अल्लाह ताला मुकर्रर करेगा और वो खुशखबरी देंगे मौत के वक्त भी। हदीस में आता है कि इस आयत में अल्लाह ताला ने जो बताया है कि नेक लोगों पे फरिश्तों को अल्लाह ताला नाजिल करेगा। ऐसा इंसान जो होगा जो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने वाला होगा, किसी बुत की या किसी पीर की या फकीर की या किसी मज़ार की या किसी बाबा की इबादत करने वाला नहीं होगा, बस एक अल्लाह की इबादत करने वाला होगा, तो उसके लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल फरमाएगा, फरिश्तों की मदद फरमाएगा। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को बद्र के मकाम पे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा रेज़ होकर के ज़ारो कतार होकर के अल्लाह के सामने जब दुआ किया था, तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाया था और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम ने महसूस किया और देखा। आप इतिहास किताबों को उठा के पढ़ें, सीरत की किताबों को उठा के पढ़ें कि 1000 वो थे और 313 ये थे, तो फरिश्तों से अल्लाह ताला ने मदद फरमाया और वो सारे शिकस्त हार गए और उनको मैदान छोड़ कर भागना पड़ा। बहुत ज़्यादा वो मतलब कि वो जहन्नम रसीद भी हुए और हमारे सहाबा किराम हम ईमान वालों की जीत हुई। तो ऐसे यहाँ पे भी हम देखते हैं, तो जब ईमान वाला जब ऐसे करेगा तो फिर अल्लाह ताला उनको ऐसे इंसान पे फरिश्तों की मदद फरमाएगा। अब भी अल्लाह ताला फरिश्तों की मदद देगा। उसकी हदीस में तशरीह बताई गई है कि जब उसकी रूह निकलने वाली होती है, जब रूह निकलने लगती है, जब बेकरारी का आलम होता है, हमारे पास अगर बीघों का बीघा हो, लाखों का लाखों बैंक बैलेंस हो या हर तरह के नौकर चाकर हो या बहुत सारे हमारी औलाद हो, लेकिन जब मौत का फरिश्ता जब आ जाएगा, जब इस्राइल अलैहिस्सलाम जब आ जाएंगे और पैर के वो जो और अंगूठा है वहाँ से जब रूह खींचने लगेंगे, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो इंतकाल करते हैं। आज मोबाइल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, तो देखते हैं कि जो लोग आज अचानक से इंतकाल करते हैं तो कैसे उनकी हालत हो जाती है, क्या उनकी हालत हो जाती है, कोई मददगार वहाँ पे नहीं होता है। और जब रूह निकलनी शुरू हो जाती है, जिसमें जब ठंडा होना शुरू होता है, पैर से जब रूह चल पड़ती है, जब फरिश्ता को मलकुल मौत को जब इस्राइल अलैहिस्सलाम को इंसान जब देख लेता है तो हर चीज उसकी धरी की धरी रह जाती है, कोई यार मददगार नहीं होता है। लेकिन ऐसा इंसान जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ऐसे इंसान के लिए फरिश्तों की मदद देता है और फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, वहाँ पे फरिश्ते कहते हैं कि तुम किसी चीज का खौफ ना करो, तुम ये दुनिया की जिंदगी को छोड़ के जा रहे हो, इसका भी खौफ ना करो, गम ना करो। तुमने जो जिंदगी गुजारा है इससे तुमने जन्नत को कमा लिया है, इससे लाखों करोड़ों अरबों खरबों इसका कोई हद हिसाब नहीं है, बेहतर जिंदगी है। तो वो खुशखबरी वहाँ पे देते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू। और फिर हदीस में आता है कि जब रूह जब निकलती है, जब रूह निकलने लगती है, जब इंसान की जब ये हालत होती है, कोई यारो मददगार नहीं होता है, हालत बिगड़ जाती है, तो वहाँ पे ये फरिश्ते मदद करते हैं ऐसे इंसान की। और दूसरी बात है, जब फिर हम जब अपने अजीज रिश्तेदारों को जब हम कब्र में उतार देते हैं, कब्र में हम लिटा देते हैं, हम देखते हैं कोई भी इंसान यहाँ पे दुनिया में आया है वो बगैर कब्र में गए हुए बाकी नहीं रहा है। हमें भी एक ना एक दिन कब्र में चले जाना है, हमें भी ये सारी चीजें हमें छोड़ के चले जाना है और ये सारे लोग हमें कब्रों में पहुंचा देंगे, वहां से हमें अपना अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। तो वहां पे भी जब फरिश्ते जो आएंगे, वहां पे जब मुनकर नकीर आएंगे, वहां पे जब बैठाएंगे, तो वहां पे भी ये फरिश्ते वहां पे जो नेक इंसान होगा, बस एक अल्लाह की इबादत किया होगा, तो उसको वहाँ पे भी उस मुसीबत के उस तन्हाई के हालत में भी वहाँ पे भी वो साथी होंगे और वहाँ पे भी वो उसकी मदद करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। और फिर
तीसरी चीज जो बताई गई है कि कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक एक कब्र से 70-70 आदमी उठाए जाएंगे। इतना हालत खराब होगी कि सूरज जो है इतना ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है। हम साइंस में पढ़ते हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए जानते हैं कितना हजारों लाखों किलोमीटर दूर है सूरज। तो हमें इतनी गर्मी महसूस होती है कि अगर टीना का रूम हो या ऐसा हो, अगर दिन भर आदमी को बंद कर दिया जाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन उस दिन कयामत के दिन सूरज एकदम बिल्कुल नेज़े के बराबर हो जाएगा, जितना बांस की हमारी लंबाई होती है, तो इतना नज़दीक आ जाएगा। तो क्या हालत हो गई। तो वहाँ पे जो अपने एतबार से, अपने अमाल के एतबार से कोई इंसान जो है वो पसीनों में टखना के बराबर होगा, कोई घुटनों के बराबर होगा, कोई कमर के बराबर होगा, कोई कंधा के बराबर पसीना में उब डूब कर रहा होगा, कोई पसीना ही में उब डूब कर रहा होगा। इस तरह की हालत होगी। तो वहाँ पे भी जो इंसान जो नेक होगा, इस तरह की जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया होगा, और इस पे इस्तिकामत बरता होगा, इस पे डट गया होगा, तो वहाँ पे भी ये फरिश्ते उसकी हेल्प करेंगे। ये तीनों जगहों पे ऐसे इंसान के लिए ये फरिश्ते जो हैं, फरिश्तों से अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है हम मुसलमानों की, जो कितनी बड़ी खुशखबरी है। तो इस पे हमें ध्यान दें, इस पे अगर हम गौर और फिक्र करें, इस पे गौर और फिक्र के जितना हम ज़्यादा गौर और फिक्र करेंगे, हमारे दिमाग को अल्लाह ताला खोल देगा। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे दे। हमारे ऊपर जो निस्यान है, जो भूल चूक हमारे दिलो दिमाग पे जो छाई हुई है, जो हमारे आंखों पे, दिमागों पे, दिलों पे जो पर्दा पड़ा हुआ है, अल्लाह तू अपनी रहमत से, तू अपनी कुदरत से उसको हटा दे और हमें नेक कामों पे, नेक रास्तों पे चलने की तौफीक दे दे और हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक दे दे। हमें इस चीज़ की दुआ करनी चाहिए, इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए हमें, और नमाजों की पाबंदी करनी चाहिए। 24 घंटे का टाइम मिलता है, 5 वक्त अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो 1 घंटा, 24 घंटा में 1 घंटा हम नहीं देते हैं। और दुनिया की लायानी चीज़ें हैं, आज देखते हैं जैसे ये मोबाइल आ गया है, आज के नौजवान जो है, माँ बाप जो है देखते नहीं हैं, अपनी औलादों की फिक्र नहीं करते हैं। यही औलाद जो हम देखते हैं, यही औलाद जो है हम इस औलाद के लिए हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं, करते हैं। बहुत सारे माँ बाप जो हैं इसी औलाद के लिए चोरी डकैती करते हैं, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा गुनाह करते हैं, और कि हमारा बेटा, हमारी बेटी सुख चैन से रहे, लेकिन इसकी फिक्र नहीं करते हैं कि वो नमाज पढ़ता है कि नहीं और अल्लाह ताला की इबादत करता है कि नहीं। लायानी चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद करता है तो इसकी कोई फिक्र नहीं है। और यही औलाद उसको, अगर वो नेक भी है, अगर नमाजी भी है, तो वो इसी औलाद की वजह से उसको पकड़ हो जाएगा, और वो अगर जन्नती भी होगा तो उसकी वजह से वो जहन्नम में जा सकता है। इस चीज़ की हमें फिक्र नहीं है। बिल्कुल हम भेड़ बकरियों की तरह आंख बंद करके अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, गैर कौमों की तरह, चौपाइयों की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। यह हमें हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। इन्हीं चंद बातों के साथ, बहुत लंबी बात हो गई, अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और अपनी रहमत से और अपनी कुदरत से हमें सीधे रास्तों पर डाल दे, हमें सीधे रास्तों की तमीज़ दे दे और बुराइयों से नफरत और नेकियों से हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे, नेक कामों की तरफ हमारी दिलो दिमाग को लगा दे और हमें जन्नती बना दे। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।